Hello friends, how are you? Welcome to Trypanasy Center. Let's see what is our topic today. This is causing by the protozoa. There is the most important here topic, the disease causing by the protozoa. I have preview discussed for the bacteria and the virus. The here disease are causing by the protozoa. The first disease is come here is a malaria. Malaria is a common disease for the India. There malaria is there. Pathogen has the malaria parasite, different species of Plasmodium. There is a different species of Plasmodium is causing by the malaria. There is a pathogen is a malaria parasite, and the mode of transmission here by bite of female Anopheles mosquito. There is a female Anopheles mosquito are mode of transmissions, and there is inclusion period is a approximately 12 days. 12 days is inclusion period here. But the next here are symptoms. The symptom here is a headache, nauseous, and the muscular pain. There is a main symptom of muscular pain and the headache. And the symptom also is a feeling of chillness and shiverings and the flowing by the fever, which become a normal along with the sweating after some time. There is a different conditions and the feelings of the chilling and shiverings and there are sweat after some time. There are very different types of symptom here, and the patient become a weak and anemic. There is a main symptom. They are weak and anemics, and if not be treated properly, secondary complications may be lead to be death. There is the most important here. If not be treated properly, is a secondary complication may be lead to the death. And the hair prevention and cure here. The here is a prevention called the fitting of double door window. There is first here fitting of double door windows with the jali and the wire means in the house and prevent entry of mosquitoes, because there is a causing by the mosquito of female Anopheles. And there is the use of mosquito net and mosquito repellent. And the no water should be allowed to collect in the ditch and other open space, prevent a mosquito breeding. And the sprinkling of the kerosene oil in the ditch is other open space where water get collected. And the next is the anti-malaria drugs to be taken. There is the most important prevention and cure here. The next is a amebosis. Amebosis is Ambergris densatrix. There is a pathogen is Entamoeba histolytica. There is a Entamoeba histolytica is a pathogen. There is amebosis here, Entamoeba histolytica, and mode of transmission is a contaminated food and the water. There is the most important here symptom. There is a formation of ulcer in the intestine, and the feeling of abdominal pain and nausea, and the acute diarrhea and the mucous stool. There is the main symptom of malaria. And the prevention occur here. The proper sanitation should be maintained, and vegetable and fruit must be properly washed before eating. And antibiotics may be given to be is a patients. यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आया है प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न रोग। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो है हमने बैक्टीरियल के बारे में पढ़ा था, वायरस के बारे में पढ़ा था, जो कि काफ़ी हमने पढ़ा और जाना भी और इसके इंपॉर्टेंस को भी समझा। अब हमारा आ गया है प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न रोग। देखिए इसमें सबसे पहला तो आता है मलेरिया। मलेरिया जो है कई मानने में जो है आपको पता ही है कि हर एक इंडियन व्यक्ति जो है इसे सामना करता ही करता है, क्योंकि मलेरिया जो है आम फैलने वाला बीमारी जो है इंडिया में है। और जनरली कहा जाए तो ये हमारी गलतियों की वजह से ही फैलता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कहीं भी कूलर हो, कहीं पानी का टायर हो, कहीं नाले हो, नालियाँ हो, वहाँ पानी जो होता है जमा हुआ रहता है, और इसकी वजह से जो है इसके जो है एजेंट को जो है पनपने का सबसे अच्छा जो है सोर्स मिल जाता है। तो ये बीमारी भी जो है हमें बहुत नुकसान और बहुत परेशान भी करता है। ये जनरली आपने देखा भी होगा। कहते हैं अगर मलेरिया की बात करें तो इसका जो है रोगजनक जो है मलेरिया परजीवी होती है, जिसको हम प्लाज्मोडियम्स कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम की बहुत से जो स्पीसीज़ हैं इसके कारक बनते हैं। अगर देखा जाए संचार की विधि जो है फैलता है वो मादा मच्छर जो है एनोफिलीज मच्छर काटने की वजह से होता है, यानी मादा मच्छर काटने की वजह से जो है ये फैलती है। अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए तो ये 12 दिन में जो है आपको दिखने लग जाएगा। अगर बात करें लक्षण का तो इसमें लक्षण तो यही दिखेगा कि सर दर्द, मिचली, उबकाव एवं पेशियों में दर्द। देखिए सबसे बड़ा इसका कारण यही होता है कि पेशियों में जो है काफ़ी दर्द होता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके समक्ष रहा। कहते हैं ठिठुरना और कांपना यानी शिवरिंग
और जो है आपको जो है काफ़ी फीलिंग होगा, चिलिंग फीलिंग होगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना कि अगर आप कपकपी आती है तो इसका मतलब है कहीं हद तक आपको मलेरिया का लक्षण दिख रहा है। अनुभव करना, उसके बाद ज्वार आ जाना। देखिए पहले तो आपको बहुत ठंड लगेगा, ठंड लगने के बाद आपको बुखार आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये जो है मलेरिया के लक्षण दिख रहा है। बस पसीने के साथ कुछ समय बाद ज्वार का सामान्य हो जाना। देखिए कहते हैं ये बड़ा अजीब बीमारी होती है, कभी आपको ठंड लगेगा तो बुखार चढ़ जाएगी और सडनली क्या होगा, शरीर से पसीने आने लग जाएगा। तो ये बीमारी जो है अपने आप में ही अलग है, कोई भी बीमारी में ऐसा कंडीशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, आप भी थोड़ा समझ के जो है अपना खुद का जो है प्रोटेक्शन कर सकते हो बॉडी की। अगर जो है कपकपी लग के, ठंड लग के अगर आपको बुखार होता है और कुछ समय के बाद बुखार उतर भी जाता है, ठीक है, और आपको पसीने आने लग जाते हैं, तो समझ जाना कि ये जो है मलेरिया का लक्षण आपको दिख रहा है। अगर देखा जाए इसमें क्या होता है तो रोगी कमजोर एवं रक्त की पीड़िता हो जाता है। तो जनरली सी बात है, बुखार चढ़ना उतरना तो है कमजोर के लक्षण तो दिखेगा ही दिखेगा। यदि कहते हैं सही प्रकार उपचार न किया जाए तो द्वितीयक जटिलता के कारण जो है मृत्यु भी हो जाता है, यानी दूसरे स्टेज में जो है व्यक्ति की मृत्यु भी जाती है। इसलिए समय रहते जो है इस बीमारी का जो है रख रखाव कर लेना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। अगर बात करें इसका रोकथाम एवं उपचार की तो यही बात है जनरली जो आप लोग करते हो कि दोहरी जालीदार दरवाजे जो है खिड़कियाँ, ताकि मच्छर का प्रवेश को रोका जा सके। यानी जितना आप मादा मच्छर एनोफिलीज को रोकोगे उतना जो है आपको प्रोटेक्शन बना रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये बीमारी होने का चांसेस भी 100% बन जाता है। मच्छरदानी उपयोग कीजिए व मच्छर प्रत्याकर्षक दूर भगाने का प्रयोग कीजिए। जैसे बहुत से आपको पता है ऑल आउट होती है, बहुत से ऐसे हैं जिसका आप उपयोग करके जो है आप मच्छर को भगा सकते हो। लेकिन क्या करें, आजकल जो है बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ भी किया जाता है, मच्छर जो है उसके प्रति जो प्रतिरक्षा क्षमता भी विकसित हो गई है। तो आज जितना भी कोयल वेल जला लो, इसका कोई प्रभाव मच्छरों पर भी देखने को नहीं मिलता है। तभी तो देखते हैं आजकल बहुत ही केमिकल युक्त जो है पदार्थों का यूज़ किया जाने लग गया है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अगर देखा जाए गड्ढे अन्य खुली जगहों पर पानी एकत्र न होने दिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात रहेगा, जिससे मच्छरों का पैदा होना बंद किया जा सके। गड्ढे व अन्य पानी एकत्र होने वाले स्थान पर जो है मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए और मलेरिया रोधी दवाइयों का उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है। यहाँ पर जो अगला टॉपिक हमारे समक्ष आया है अम्बिता या अम्बिरूबनता, जिसे हम एम्बोसिस भी कहते हैं। एम्बोसिस जो है डायसेंट्रिक यानी एम्बोबिक्स डायसेंट्रिक की वजह से है ये, ठीक है। इसका रोगजनक भी यही होता है एंटोअमीबा हिस्टोलेटिका। एंटोअमीबा हिस्टोलेटिका जो है इसका रोगजनक है। अगर बात करें संचार की विधि तो ये दूषित भोजन एवं जल से ये बहुत आसानी से फैल जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मेन कारण भोजन और जल जो है बीमारी का सबसे बड़ा कारण बना है। हमारा देश में अगर बीमारी इतना अधिक फैल रहा है तो इसका कहीं ना कहीं कारण जो है जल दूषित जल है और भोजन, गंदा भोजन है, क्योंकि ये चीज़ें जो है आम देखने को मिल जाता है। अब देखिए अच्छा भोजन व्यक्ति खाएगा कैसे, जब आए दिन जो है इसका रेट बढ़ता ही चला जाएगा। आए दिन टीवी पे यही बहस चलती रहती कि रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, लेकिन इसके कोई उपाय ही नहीं सोचा जा रहा है। तो अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा? गंदे गंदे चीज़ आप मार्केट से लेके आओगे, सस्ते सस्ते चीज़, तो वो तो 100% जो है इन बीमारियों को जो है निमंत्रण देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बात किया जाए जल की तो आपको पता ही है कि जल तो इतना फ्री सरकार ने कर दिया है कि इसकी मेंटेनेंस क्षमता ही अब ख़त्म हो गया है। लोग मेंटेनेंस करना ही भूल गए हैं, जिसकी वजह से जल की इतनी कमी हो गई है और दूषित जल हमें पीने में मजबूर भी हम हो गए हैं। तो कहते हैं कई हद तक जो है हम लोग खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और दूसरे व्यक्ति जो है हमारे मूर्खता का जो है फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर लक्षण की तो लक्षण तो आपको पता है कि इसमें जो है आंतों में प्रवण का निर्माण होगा, अल्सर आंतों में बनने लग जाएगा, पेट में दर्द और मिचली उबकाऊ आने लग जाता है और तीव्र दस्त और मल में श्लेष्मा आती है। यानी जो मल जो निकलेगा उसमें श्लेष्मा की मात्रा रहेगा। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि जो है अमीबा हिस्टोलेटिका का जो है डिसीज़ आपको कॉजिंग हो चुकी है। अगर रोकथाम एवं उपचार की बात करें तो उचित स्वास्थ्य बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं तरकारी एवं फलों को खाने से पहले भली भांति धोना चाहिए। देखिए यहाँ तरकारी लिखा हुआ है, ये वर्ड आप कंफ्यूज मत होना। तरकारी का मतलब यहाँ पर होता है सब्जियाँ,
ठीक है, क्योंकि ये सिंपल भाषा में लिया गया संस्कृत वर्ड में तरकारी वर्ड लिखा गया, लेकिन ये सब्जियों की बात कर रहा है। सब्जी एवं फलों को जो है खाने से पहले भली भांति धो लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन कहीं भी आप आते हो बाजार से खाना ऐसे ही बनाने लग जाते हो। आजकल मैंने देखा है गृहिणी भी ऐसे ही कार्य करती है कि आजकल इन चीज़ को मेंटेनेंस नहीं करती है, लाती है बाजार से भोजन को बिना धोए भी काटने लग जाती है। तो इन बातों पे ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपने भी परिवार को जो है सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हो। तो इसमें आपको जागरूक रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, भागम भाग की दुनिया में नहीं पहुंचिए। कहते हैं अगर आपके बच्चे अगर घर में स्वस्थ रहेंगे ना तो आप ले जाने कितने पैसे बचा लोगे। ठीक है, आज कहते हैं आज पुरुष और महिलाएं दोनों काम में लगी हुई है, काम कर रही है। तो कहते हैं खाना पीना और बच्चों के देखभाल में जो है कोई किसी का मेंटेनेंस नहीं चल रहा है। तो क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो भी मर्जी होता है बनाते हैं, फटाफट करते हैं और ऑफिस के दौड़ जाते हैं। लेकिन इनके जो है स्वास्थ्य इनका पीछे रह जाता है। और स्वास्थ्य पीछे रहने से वजह से क्या होगा, आप जितना कमाते नहीं हो उतना आपको गंवाना पड़ जाएगा। तो थोड़ा सोचिए इस बात पे और गंभीरता लेना है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी अपनी विवेकता है। इसमें किसी के दूसरे की बातें नहीं सुनने की आपकी आवश्यकता है। कहते हैं इसे अगर उपचार की बात किया जाए तो उपचार तो यही है कि उचित स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए, ठीक है, और जो है रोगाणु के प्रति जैविक और दवाइयाँ प्रदान किए जाने की जरूरी होती है। यानी हम इसमें एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब बातें जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखती है। The next here is the most important topic, disease causing by is a bomb. There is a disease causing by the bomb, helminth. Helminth, there is a disease causing by the bomb. The first disease is here, filariasis. Filariasis is a pathogen of the filaria bomb is Viscorius bancroftii. And the mode of transmission here, bite of mosquito. There is a bite of mosquito, Aedes aegypti. There are two types of mosquito bite. There is a causing of filariasis. And the filariasis is a symptom. There is a fever, collection of the endothelial cells, metabolized of wall of lymphatic vessels, and swelling of take place in content part of body like a legs, breast, and scrotum, and swelling of the leg which appear as a leg of elephant. There is a legs of elephant. So this disease is also called to elephantiasis. Elephantiasis is also called to filariasis disease. So here so the patient is suffering for the elephantiasis. There is leg is the elephant leg size. There is a called elephantiasis on disease. The next is the prevention and call. There is a mesh door and window in the used to check of entry of mosquito. Is the first important things here. And the water collected in the tank or other articles should be properly covered. And the sprinkling of the kerosene in the dakshes and drugs may be administered. तो बात यहाँ पर किया जाए तो कृमियों यानी हेलमिंथ्स द्वारा उत्पन्न रोग। देखिए ये जो होता है कृमियों द्वारा उत्पन्न रोग होता है, हेलमिंथ्स कहते हैं इसको जो है फिलारिया रोग भी कहते हैं। फिलारिया रोग होती है जिसे फिल पाँव भी कहते हैं या फिलोरोसिस भी कहते हैं। तो ये बीमारी कई नाम है, लेकिन इसका जो है लक्षण क्लियर दिखता है। अगर देखा जाए इसके रोग जनक के बारे में तो ये जो है फिलारिया कृमि की वजह से ये बीमारी काफ़ी फैलता है और इसको जो है बुसरेफ या ब्रोफाइटस यानी ब्रोकोलियोफाइटस संचार की विधि से ये फैलता है। अगर बात करें इंडीज एवं क्लोरोसिस मच्छरों काटने से ये जो है एडीज और जो क्लोरोकेक्स मच्छर काटने की वजह से होता है, तो ये बीमारी काफ़ी घातक भी होता है। इस बीमारी को जो है दूसरा नाम जो है फिल पाँव भी कहा जाता है, यानी एलिफेंथेसिस भी कहा जाता है, यानी हाथी की तरह पैर। आप जैसे चित्र में भी देख सकते हो कि जो एक व्यक्ति है उसको देखिए किस इस मच्छर काटने की वजह से जो है एलिफेंथेसिस यानी फिल पाँव जो है पीड़ित व्यक्ति यहाँ नजर आएगा। तो ये बीमारी बहुत घातक भी होता है और बहुत भद्दा भी होता है, और इसको जो है मस्किटो से बचना ही इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज बात रखता है। अगर बात करें इसके लक्षण के तो आपको पता है कि जब ये बीमारी होती है तो सबसे अधिक तो ज्वार आ जाती है, यानी बुखार लगता रहता है। कहते हैं लसिका वाहिकाओं में भित्ति में जो है अंतकाला कोशिकाएं उपचारित का संग्रहित हो जाता है, यानी मेटाबोलाइटिस हो जाती है यहाँ पर लसिकाओं में, जहाँ पर लसिका वाहिका होती है। शरीर के कुछ भाग जैसे टांग, छातियाँ, अंडकोश आदि में सूजन आ जाती हैं। देखिए इसमें जो है कहते हैं यहाँ पर अगर देखो टेस्टिस में भी सूजन आ जाती है और टांगों में भी और छातियों में भी सूजन आ जाएगा। कभी कभी देखते हो कि बड़े बड़े बंदों को जो कभी कभी होते हैं कि टांगें मोटी हो जाती है, छातियाँ में भी देखने को मिला है, और अंडकोश भी बड़ा हो जाता है। अगर बात करें हम टांगों की सूजन जो हाथी के टांगों की भांति प्रतीत होती है, इस रोग को है सलीफ्त यानी सलीफ्त फूला हुआ
पद मतलब पैर, यानी फील्ड पाँव भी कहते हैं, यानी एलिफेंथस के नाम से भी ये जाना जाता है। अगर यहाँ बात करें हम कि इसके रोकथाम एवं जो है इसका उपचार के विषय में, तो उपचार तो आपको पता ही है कि अगर मच्छर के काटने से ये फैल रहा है तो मच्छर को हम एंट्री ना करने दें, तो ये सबसे बड़ा उपचार के रूप में हो सकता है। मच्छरों के प्रवेश को रोकने के लिए घर में जो है जालीदार दरवाजे और खिड़कियों का लगाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये जो है मच्छर एंट्री करेंगे और आपको बीमारी जरूर देंगे। टंकियों व अन्य प्रांतों में संग्रहित जल को जो है भली भांति ढका होना चाहिए और जो है खुले में नहीं रखना चाहिए। जहाँ भी पानी आपको दिखे वहाँ पर या तो कुछ ना कुछ आप डाल दो। गड्ढों में मिट्टी का तेल छिड़काव करने से भी जो है इस बीमारी से बचा जा सकता है और दवाई भी दी जा सकती है। देखिए इसका इलाज भी होता है तो दवाई भी इसको दिया जा सकता है। कहते हैं अगर बहुत से जो है बायोजैविक्स जो है भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई पाउंड है, नदी है, कहीं भी है, तो हम ऐसे मछलियों को रख सकते हैं जो कि उसके जीवाणुओं को खा जाए, यानी जो उसके बच्चे होते हैं जो अंडे देते हैं उसको बहुत से मछलियों को जो है इंटरेस्टिंग भोजन के रूप में होता है। तो अगर वो मच्छर अगर हम रख देते हैं, मछलियाँ उस पानी में रख देते हैं, तो हो सकता है कि इस बीमारी से और भी बचा जा सके। तो क्या कहते हैं हमारे पास सब चीज़ का उपाय है, फिर भी हम जो है नहीं समझते हैं, नहीं जान पाते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी संचारी असंचारी रोग जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगला टॉपिक देखना मत भूलना, ये कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे 9th क्लास हो या 11th हो, +2 हो, चाहे जहाँ भी हो। आपके अगर सिलेबस में होगा कम्युनिकेशन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, तो इसका मतलब जो है वो चैप्टर और टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखना मत भूलना इसका अगला टॉपिक। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक जो है हम अगले एपिसोड में करेंगे। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि एक ही काम करना है आपने भी, कि आपने जितना हो सके तिरपान सेंटर को जो है आगे बढ़ाना है। इसके लिए क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और साथ में इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरे बच्चों तक भी जो है इस वीडियो को पहुँचाना है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना घर घर जाना है, ना आपको बहुत मेहनत करना है। सिर्फ आपने क्या करना है कि यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।